press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. دوستو آج YouTube کے ذریعے اپنے چینل کے ذریعے میں محمد امتیاز لے کر حاضر ہوں درخشاں اردو 10واں کا 12واں چیپٹر 12واں لیسن فہمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو بات چیت۔ یہ کیا ہے؟ ناول ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ناول کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہاں ناول لکھا ہوا ہے، دیکھیے دوستو، تو میں پڑھنا چالو کرتا ہوں۔ اردو کی نثری ادب میں ناول ایک اہم ساخ ہے، ڈالی ہے۔ ناول کے فن کے ذریعے ہماری زندگی، ماحول اور روزمرہ کے معاملات کی آئینہ داری ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں ہم بنیادی طور یہ صنف مغربی ادب کی دین ہے۔ برطانیہ کی ایک خاتون ادبیہ صنعتی انقلاب کے بعد ناول نگاری کی ابتدائی کوششیں شروع ہو گئی تھیں اور کچھ ہی مدت میں ناول نگاروں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جن کی کوششوں سے صنف ناول کو اعتبار حاصل ہو گیا۔ اردو ناول کو فروغ دینے والوں میں ڈپٹی نذیر احمد کا نام سر فہرست ہے، ان کا نام اول آتا ہے۔ انہوں نے مرات العروس کے عنوان سے قصے کی ایک ایسی کتاب لکھی جسے بعد کے زمانے میں اردو کا پہلا ناول قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ نذیر احمد نے 6 ناول لکھے۔ ان تمام ناول کے قصوں کا مقصد قوم کی زبون حالی اور اصلاح معاشرہ ہے۔ شاد عظیم آبادی کا ناول صورت الخیال، حالی کے مجالس النساء، رشید النساء اور اصلاح النساء وغیرہ بھی کم و بیش نذیر احمد تقلید ہے۔ اسی زمانے میں عبدالحلیم شرر اور پنڈت رتن ناتھ شرشار نے ناول نگاری کا ایک الگ نگار خانہ سجایا۔ شرر تاریخ کے پردے میں اپنی باتیں کہتے ہیں، جبکہ سرشار تہذیب و ثقافت اور قدروں کو اپنے ناول کی بنیاد بناتے ہیں۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں اردو ناول کے نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا امراؤ جان ادا لے کر منظر عام پر آئے۔ ناول کے فن اور تکنیک کے اعتبار سے مرزا ہادی رسوا نے جس عہد جدید کا خاکہ کھینچا، اس کا عروج پریم چند کے ناولوں میں نظر آتا ہے۔ گودان سے میدان امن تک پریم چند کے 15 ناول اس سے کے عمدہ نمونے ہیں۔ پریم چند کے بعد ترقی پسند ناول نگاروں میں سجاد ظہیر کا ناول لندن کی ایک رات ہے۔ کرش چند اور عصمت چغتائی ترقی پسندوں میں خاصے مقبول ناول نگار ہیں۔ ناول کا سفر مسلسل جاری ہے۔ اب جو ہے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1840 ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ کی بستی کوریٹر میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سعادت علی تھا۔ نذیر احمد کا نسبتی سلسلہ ایک بزرگ عبدالغفور اعظم پوری سے ملتا ہے، جو شاہ عبدالقدوس گنگوہی کے مشہور خلفاء میں تھے۔ ان کے نانا قاضی غلام علی شاہ کا شمار بھی اپنے وقت کے بڑے بزرگوں میں ہوتا ہے۔ نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں ہوئی۔ اپنے والد سعادت علی سے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی اور مولوی نصر اللہ سے بھی عربی کی معیاری کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ پھر نذیر احمد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی گئے۔ پرنسپل کارگل کے توسط سے 1845 عیسوی میں دہلی کالج میں داخل ہوئے اور 1853 عیسوی تک دہلی میں مقیم رہے۔ اسی دوران مولوی عبدالخالص کی پوتی سے ان کی شادی ہو گئی۔ 13 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ شادی کے بعد فکر و معاش دامنگیر ہوئی اور وصول معاش کے لیے پنجاب گئے اور ٹیمپل صاحب میں 40 روپے ماہوار پر معلمی کے فرائض انجام پڑھانے لگے۔ اس ملازمت سے وہ مطمئن نہیں تھے، اس لیے استعفیٰ دے دیا اور کانپور میں مدارس کی ڈپٹی انسپکٹر ہو گئے، لیکن ناموافق حالات کے نتیجہ میں یہاں بھی استعفیٰ دینا پڑا۔
उसी दौरान गद्दार 1897 ईस्वी का वाक़या पेश आया। किसी तरह दिल्ली आ गए और तसनीफ व तालीस में मशगूल हो गए। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नावल निगार तस्लीम किया जाता है। अव्वलीन पहला। मुरातुल उरूस की अशात 1869 ईस्वी में हुई। इस नावल के दो किरदार अकबरी और असगरी अब भी जिंदा किरदार है। उसके बाद 1872 में उनका नावल नबातुल नाश शाया हुआ। इस नावल में तालीम पर खासा जोर दिया गया है। उसका एक किरदार असगरी खानम तालीम निस्वा को आम करती है। तो बतुन्नसू की अशात 1877 ईस्वी में हुई। फनी एतबार से तो बतुन्नसू कदरे बेहतर है। नसूब आलम ख्वाब में हश्र का नक्शा देखता है। यही ख्वाब उसकी ज़िंदगी में इस्लाही इनकलाब का बास होता है। फसाना मुब्तला 1885 ईस्वी में शाया हुआ। इब्नुल वक्त नज़ीर अहमद के नावलों में सबसे अहम है। नज़ीर अहमद का आखिरी नावल रोयाए सादका है जो 1884 ईस्वी में शाया हुआ। नज़ीर अहमद के नावलों के दूररस असरात मरतब हुए इस हद तक के हर इलाके में इस नौयत की इस्लाही तहरीरें मुसलसल लिखी जाने लगी। अपनी तसानीफ के जरिया नज़ीर अहमद ने उर्दू नावल के लिए एक मैदान तैयार कर दिया। 74 साल की उम्र में नज़ीर अहमद पर फॉलेज का असर हुआ और 28 दिसंबर 1910 ईस्वी में उनका विसाल हो गया, उनकी मौत हो गई। यानी क्या हुआ? फहमीदा, तुमको जो अब चंद रोज से नमाज पढ़ते देखती हूँ तो परसों मुझसे पूछने लगी कि अम्मा जान दिन में कई मर्तबा अब्बा जान हाथ मुंह धोकर ये क्या क्या करते हैं। पहले देर तक बड़े अदब से हाथ बांधे खड़े रहते हैं, चुपके चुपके कुछ बातें करते हैं, फिर झुकते हैं, फिर मुंह को के बल गिर पड़ते हैं। मैं बेटी नमाज पढ़ते हैं। हमीदा कहती अम्मा जान नमाज क्या? नमाज कोई इस्ताजाब के साथ पूछना ये पहली चुटकी थी कि उसने मेरे दिल में ली। मैं बेटी खुदा की इबादत को नमाज कहते हैं। हमीदा कहती है अम्मा जान खुदा क्या चीज़ है और इबादत उसकी कौन है? उसका भोलेपन से यह पूछना था कि खुदा क्या चीज़ है और इबादत उसकी कौन है कि मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। मैं क्यों, क्या तुम खुदा को नहीं जानती? हमीदा कहती है मैं सब लोगों को खुदा की कसम खाते तो सुनती हूँ और जब कभी अम्मा जान तुम खफा होती हो तो क्या करती हो? खुदा की मार और तुझे खुदा समझे। हमीदा मैं सब लोगों को खुदा की कसम खाते तो सुनती हूँ और जब कभी अम्मा जान तुम खफा होती हो तो कहा करती हूँ खुदा की मार और तुझे खुदा समझे। शायद खुदा बेजा को कहते हैं, मगर बेजा होती तो उसकी कसम ना खाते। मैं हमीदा तोबा करो तोबा, खुदा बेजा नहीं है। खुदा वह है जिसने हम सब को पैदा किया है, वही रोजी देता है, मारता है, वही जिलाता है, वही पालता है। हमीदा क्या अब्बा जान तुमको भी खुदा ही ने पैदा किया है? मैं हाँ मुझको भी। हमीदा कहती है और अब्बा जान को भी? मैं हाँ तुम्हारे अब्बा जान को भी। हमीदा कहती है और ननी बुआ को भी? तो मैं हाँ ननी बुआ को भी। हमीदा अम्मा जान क्या हर रोज हमारे घर में खाना नहीं पकता? मैं क्यों नहीं पकता? हमीदा फिर तुम तो कहती हो कि खुदा सबको खाने को देता है। मैं अल्लाह मियाँ पानी बरसाते हैं, अल्लाह मेरे गले और मेवा और तरकारियाँ हम लोगों के वास्ते ज़मीन में उगाते हैं, वही हम सब लोग खाते हैं। ये नावल बहुत बड़ा है। मैं जो है आपने क्या पढ़ा इसका खुलासा मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे है ज़ेरे निसाब इक़्तिबास डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसूह के इक़्तिबास से माखूज है, जिसका नुक्ता नज़र खालिस इस्लाही है, सलाह देने वाली है।
नज़ीर अहमद के नाविलों की एक खसूसियत ये रही है कि बेशतर नाविल इस्लाही नुक्ते नज़र के हामिल रहे हैं, जिसका पस मंज़र यह है कि नज़ीर अहमद के ज़माने में उर्दू नाविल ने एक फ़न की हैसियत इख्तियार नहीं की थी। इसलिए अपने बच्चों की अखलाकी तालीम के लिए उन्होंने अखलाकियात और बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मुतालिक चंद किताबें लिखी, जो बाद में उर्दू नाविल के फ़रोग़ के लिए पेशखीमा साबित हुई। नाविल तोबतुन नसूह का ये इक़्तिबास नसूह की बीवी फाहमीदा और मजली बेटी हमीदा की आपसी गुफ्तगू पर मुश्तमिल है, जिसमें तालीम व तरबियत खुसूसन दीनी तालीम को गुफ्तगू का मौजू बनाया गया है। दीनी तालीम के बारे में लिखा गया है कि बच्ची है, वो कहती है कि नमाज क्या है, खुदा क्या है, खुदा हमको रोजी देता है, खुदा बेजान है क्या, तो बच्ची है वो नहीं समझती है। इसी सब के बारे में टोटल नाविल में लिखा हुआ है, जिसका बुनियादी मकसद बच्चों के अबूरी दौर में उनका ज़हनी इस्लाह करना है, बच्चों को समझाना है, सलाह देना है। इन गुफ्तगू में बहुत से पहलू ऐसे भी आए हैं जिनसे बिलवास्ता तौर पर दीनी तालीम से मुतालिक बच्चों के ज़हन को बेदार करना है, जगाना है। तो तोबतुन नसूह के मरकज़ी किरदार खुद नसूह हैं और अपने ख़ानदान के मुखिया भी हैं, जिन्होंने नसूह नाम के आदमी के बारे में है, जिन्होंने ख़ानदान के तमाम अफराद की इस्लाह का बेड़ा उठा रखा है। अफराद फ़र्द की जमा, इस्लाह सलाह की जमा। नसूह के बड़े बेटे कलीम का किरदार मुनफी ज़ेहत का हामिल है और एक लड़की आलिया भी कलीम की राह की ही मुसाफिर है, रास्ता मतलब रास्ता। जबकि नसूह का दूसरा लड़का सलीम और हमीदा व सालिया मुस्बत ख्यालात के हामिल हैं। नजरियों के इस इख्तलाफ में इस्लाह की कोशिश की गई है। आगे है अब जो है कुछ क्वेश्चन है, 1 नंबर वाला पहले, उसके बाद मुख्तसर तरीन क्वेश्चन सवालात होंगे। 1 नंबर वाला क्वेश्चन होगा जो चार विकल्प होता है जिसमें, तो ये जो है पहला क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? नज़ीर अहमद की तो 1838 ईस्वी में हुई। तोबतुन नसूह किसका नाविल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल है। तीसरा सवाल, शामिल निसाब इक़्तिबास किस नाविल से माखूज है? तोबतुन नसूह नाविल से माखूज है। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे? बेटियों के, अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए लिखे। नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? 1910 ईस्वी में। मुख्तसर तरीन सवालात। पहला सवाल है नज़ीर अहमद, ये 2 नंबर का होता है, कब और कहाँ पैदा हुए? तो लिखा हुआ है जवाब, नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी में बजनुल जिला के अफजलगढ़ कस्बा में हुई। दूसरा सवाल, नज़ीर अहमद के किसी 2 नाविल के नाम लिखिए। नज़ीर अहमद के 2 नाविल का नाम है इब्नुल वक्त और तोबतुन नसूह। इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं। फाहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? फाहमीदा नसूह की बीवी थी और हमीदा नसूह की बेटी थी। फाहमीदा नसूह की बीवी और हमीदा नसूह की बेटी थी, इसको भी लिख सकते हैं आप। 14 सवाल, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नामी लिखे? नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नामी लिखे। 5वां क्वेश्चन है, ज़ेर निसाब नाविल के इक़्तिबास से 2 किरदारों के नाम लिखिए। तो इस नाविल में 2 किरदार वाले का नाम है, 2 किरदारों का नाम है। ज़ेर निसाब नाविल के इक़्तिबास से 2 किरदार नसूह और हमीदा, वैसे तो और किरदार है लेकिन 2 पूछ रहे हैं इसलिए नसूह और हमीदा हम लिख सकते हैं। आगे है मुख्तसर सवालात। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उसको लिखना होता है, तो आप लिखिएगा, किताब से भी लिख सकते हैं आप। जितना मैं पढ़ाया हूँ उसी में से ये सब है, टोटल क्वेश्चन उसी से है। आप उसको ठीक कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसमें आगे है मुख्तसर सवालात में एक थोड़ा सा कॉस्टली चीज़ है, तीसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देना चाहता हूँ। कॉपी आप निकाल के इसको लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उर्दू के किसी 5 नाविल का नाम लिखिए। किसी 5 नाविल का नाम लिखिए। जवाब है उर्दू के 5 नाविल दर्ज झैल हैं, नीचे लिखे हुए हैं। पहला नाविल तोबतुन नसूह, तोबतुन नसूह आप लिख सकते हैं, एक नाविल, उसके राइटर हो गए डिप्टी नज़ीर अहमद। दूसरा है नाविल इब्नुल वक्त, जिसके राइटर हो गए डिप्टी नज़ीर अहमद। तीसरा है फिरदौस बरी,
یہ ناول ہے جس کے ناول نگار ہیں عبد الحلیم شرر۔ چوتھا ہے امراؤ جان ادا، یہ ناول ہے اس کے رائٹر ہیں مرزا ہادی رسوا۔ پانچواں ناول ہے، 5 کو پوچھا اس لیے پانچواں ناول ہے نرملا، اس کے ناول نگار ہے منشی پریم چند۔ باقی سب آسان ہے، آپ اس کو سمجھ لیجیے گا۔ اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے